Hello students, very good morning. In my previous class where I taught about a data type, okay, as you know that there are 7 types of data type in your Python, like a text, numeric, sequence, mapping, set, boolean and binary. Okay. टेक्स्ट की अगर बात करें तो सिंपल, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी मैसेज को अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, यानी अगर आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को डालते हैं, वो आपका क्या होगा, टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप होगा. लाइक न्यूमेरिक आपका 3 पार्ट में डिवाइड है. द फर्स्ट वन इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. वेयर एज सीक्वेंस टाइप्स डेटा टाइप, तो लिस्ट, टपल्स, रेंज, ये हमारा क्या होगा, सीक्वेंस डेटा टाइप्स होगा. एंड मैपिंग की अगर बात की जाए तो डिक्शनरी हमारा मैपिंग डेटा टाइप है. एंड सेट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट डेटा टाइप. द फर्स्ट वन सेट एंड नेक्स्ट वन फ्रोजन सेट डेटा टाइप. ओके, so now let us start and try to understand about each after using a simple program. Okay, so अगर इंटीजर डेटा टाइप की बात की जाए तो सिंपल हियर आई असाइन वैल्यू लाइक a इक्वल टू 10. आप एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को असाइन कर सकते हो, लाइक b इक्वल टू -20. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर integer data type. Okay, simple. Here I use a print function to print the value that is stored in your variables a or b. जो आपके variables a और b में store है, अगर हम उसे print करवाना चाहते हैं, then simple here I write a, comma b. Now save this. Now execute this. So now notice over that this print your value 10 and 120. अब आप सोचोगे कि आखिर इंटीजर डेटा टाइप कैसे है. सो फॉर दिस हियर वी कैन यूज द टाइप फंक्शन. हम यहाँ पर एक टाइप फंक्शन का यूज करते हैं टू फाइंड आउट विच टाइप्स ऑफ डेटा टाइप द वैल्यू दैट्स बिलोंग्स. सो सिंपल हियर आई राइट अ टाइप. Okay, now save this. Now execute this. So now you may notice over that 1 minute here the error message show is what, type function takes 1 or 3 arguments. आपका जो type function है वो या तो एक argument लेगा या फिर 3 argument लेगा. About this I have also make the video. You may check my playlist. So simple here I pass a 1 argument. So type a. Now execute this. You may notice over that this is class int. ये integer data type है. Similarly when I type here int b, now save, now run this. So now you may notice over that this is integer data type like this. Okay, now the next one, ये हमारा integer data type हुआ. अब किसी भी टेक्स्ट को अगर प्रिंट करना चाहते हो आप सिंपल यू मे राइट अ टेक्स्ट. ओके, now here I assign x equal to 2.5 something. And simple if you try to print this, then simple print and the value for x. Now save this and execute this. Now you may notice over that here the message x py module x is not defined in Python. Okay, now save this. Now execute this. So you may notice over that 2.5. Okay, with that, so simple here I use a type function. So type, now save this. Now execute this. So this provide your float class. ये आपका float class का value है. Okay, now the next one is what, next again here I am going to assign the value for a equal to something like 2 and b equal to 4j. Okay, now any value yani s equal to sum equal to a plus b, and here I need to print a plus b. Okay, या फिर simple here I need to print s. Okay, now save this. Now execute this. So this is your value 2 plus 4j. But अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस डेटा टाइप का है, then simple here I can use a type. So write here a type. Now save this. Now execute this. Now notice over your output. This is complex class. Okay, so there are 3 data type जो कि आपका बिलोंग करता है न्यूमेरिक डेटा टाइप से. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हमारा आता है, चलिए एक स्ट्रिंग का एग्जांपल देख लें कि सिंपल हम अगर कोई टेक्स्ट को टाइप करते हैं, जैसे सिंपल चलो हमने यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट इक्वल टू एनी स्ट्रिंग लाइक हेलो वर्ल्ड. Okay, now print this. So print, here I want to print a text. You may also define this. जैसे हमने एक वेरिएबल लिया text1 और इसमें मैं असाइन कर दे रही हूँ सिंगल कोट्स के इनसाइड, हाय दिस इज Northern guide. Now print what text1. Now save this and execute this. So now you may notice over that this is the message. सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स हम दोनों में दे रहे हैं. तो ये हमारा जो मैसेज प्रिंट हुआ वो क्या हुआ, हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हुआ. चलो देख लेते हैं टाइप क्लास लगाकर कि आखिर ये किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है. तो सिंपल हियर आई यूज अ टाइप. ओके, नाउ
save these, now execute these. So now notice over that this is string class. ये जो आपका वैल्यू है, ये जो आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ये आपके स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है. नाउ द नेक्स्ट वन हमारा आता है सीक्वेंस डेटा टाइप. ओके, चलो तो सीक्वेंस डेटा टाइप में हम देख लें. कंट्रोल ए, सबसे पहला सीक्वेंस हमारा क्या हुआ, एल. सो एल इक्वल टू किसी भी सीक्वेंस को अगर हम असाइन करना चाहते हैं तो हम उसे लिस्ट वैल्यू को अगर हम असाइन करना चाहते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, square bracket के inside assign करेंगे. And simple, here I use a print and I want to print the value that is assigned for L. Now execute this. So now execute this. Notice over that this is your output, like 1 2 4 4 5 like this. But when you try to find out which types, then simple, here again I use a type function. यहाँ पे हम type function का use करेंगे. Now save this. Now execute this. So you may notice over that this is class list. Okay, now the next here the next data type is what, टपल्स. तो मैं इसे रखती हूँ, चलो नेक्स्ट मैं असाइन कर देती हूँ. टपल्स इक्वल टू 2 2 5 5 6 3 like this. Okay, now here I try to print the value that assigned for tuples. Now save this. Now execute this. So simple, this print the value that is assigned for your tuples. And if you try to find out which types of value that you assign, आप किस टाइप्स के वैल्यू को असाइन किए हो तो आप इसके डेटा टाइप को देख सकते हो. सिंपल, हियर आई यूज अ टाइप फंक्शन. नाउ एग्जीक्यूट दिस, देन दिस विल योर आउटपुट लाइक क्लास टपल्स. ठीक उसी तरह अगर हम चलिए यहाँ पे रेंज का यूज कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है रेंज. सो सिंपल, हियर आर इक्वल टू हमने रेंज डाला, रेंज any range value like 1 to 6. Okay, and if I try to print our range, control s and execute this. So in this case this print 1 6. okay, जो कि हमने असाइन किया है रेंज वैल्यू. लेकिन हम अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं. चलो पहले हम इसका डेटा टाइप को देख लेते हैं. तो सिंपल, हियर आई यूज अ टाइप. ओके, दिस इज द टाइप फंक्शन जो कि डिस्प्ले करेगा कि बीच डेटा टाइप्स हमारा जो ये रेंज है वो बिलोंग करता है. तो चलिए हमने इसे सेव किया और एग्जीक्यूट किया. आप देख सकते हो कि आपका डिस्प्ले कर रहा है क्लास रेंज. ओके, अब आप इस रेंज को कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने लिस्ट वैल्यू में, आप अपने टपल्स वैल्यू में, लाइक दिस. सो हियर सिंपल आई यूज अ लिस्ट. ओके, हमने यहाँ पर यूज किया लिस्ट कीवर्ड का. नाउ सेव दिस, अब हमने इसे सेव किया. नाउ एग्जीक्यूट दिस. सो इन दिस केस यू नोट ओवर दैट दिस प्रिंट 1 to 5, यानी कि n-1 रेंज हमारा कहाँ से लिया है, 1 से लेके 6 तक हमारे डेटा को यहाँ पे डिफाइन किया है, असाइन किया है. ओके, फॉर आर, इस आर के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है set data type. So there are two types of set data type. The first one is what, set, and the next one is what, a frozen set. Set को हम लोग किस तरह से define करते हैं. Simple, here I write is equal to within the curly bracket we can write a 2 2 5 6 8 10 10 like this. Okay, this is a set. And now here I use a print and I want to print the value that is stored in set. Okay, now execute this. So you may notice over that this print your value like 2 5 6 8 10. notice over that this remove your duplicate value. set में क्या होता है कि जब आप असाइन करते हो किसी भी वैल्यू को और प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेसी को रिमूव करेगा. ये आपके डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, रिमूव कर देता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन फ्रोजन सेट की अगर हम बात करें तो चलो फ्रोजन सेट एफ एस डिफाइन करते हैं. एफ एस इक्वल टू here you need to use the keyword a frozen set. so here I use a frozen set and simple हम इस frozen set वैल्यू को असाइन करेंगे within the small parenthesis and inside the big bracket यानी कि square bracket 5 5 6 3 and 3 like this. okay, now try to print this value fs. now save this. now execute this. now notice over that this print your frozen set like this. okay, so this is your frozen set and this also remove your duplicate value. ये आपका duplicate value को remove करते हुए notice over this arrange your value in the ascending order 1 3 5 6 1 3 5 6 like this. okay, ठीक उसी तरह अगर आप टाइप देखना चाहते हो सेट का, देन सिंपल हियर आई यूज टाइप फंक्शन एंड within a small parenthesis. so now control is, now execute this. so this also display the class set like this. okay, and for the frozen set simple, here again I use the type function. so here I write a type function type and close this. now save this. now execute this. so now notice over that this will display your class frozen set like this. okay, so this is what, this is all the types of data type in your python. now the next one will what, mapping data type. okay, so mapping data type की अगर हम बात करें तो mapping data type में हमारा क्या आ जाएगा, डिक्शनरी आ जाएगा. ठीक है, और हम उसे असाइन कैसे करेंगे. so suppose you have any data स्टूडेंट. ओके, std से हमने लिया है वेरिएबल्स और मैं इसमें असाइन करने जा रही हूँ की वैल्यू लाइक स्टूडेंट नेम
दिस इज स्टूडेंट नेम, ये आपका प्रिंट होगा जो आपका स्ट्रिंग वैल्यू आपके डबल कोट्स के इनसाइड है। और चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो सिंपल हियर आई राइट स्ट्रिंग नेम एनी लाइक हरी। ओके, नाउ हम इसे सेपरेट करेंगे कॉमा से। नाउ द नेक्स्ट वन ग्रेड। ग्रेड चलो, और ग्रेड में मैं दे देती हूँ, चलिए प्रिंट करवा देती हूँ कोलोन भी, और ग्रेड में दे देती हूँ ए लाइक दिस। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिक्शनरी, ये हमारा डिक्शनरी है। चलिए प्रिंट करवाते हैं, तो सिंपल हियर आई राइट प्रिंट, और मुझे प्रिंट करवाना है क्या, std, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। So in this case, you may notice over that name A is not defined. 1 minute, sorry, this is string value. So we will have to need to keep this inside the double quotes. लेकिन अगर चलो हम मार्क्स दे देते हैं, तो एक यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्क्स, केस मार्क्स, और हम इसे डिफाइन कर देते हैं कितना मार्क्स, तो 95 मार्क्स, और इसे सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। ओके, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो दिस प्रिंट लाइक नेम हरी, मार्क्स हमारा 95 एंड ग्रेड ए। ओके, सो दिस इज व्हाट विच टाइप्स। तो सिंपल ये आपका डिस्प्ले करेगा TYPE, हमने टाइप फंक्शन का यूज किया यहाँ पर टू फाइंड आउट विच टाइप्स ऑफ data type this belongs. Now save this, now execute this, so this will show this is class DICT dictionary. Okay, so now the next data type is what, a boolean data type. So boolean data type का क्या कहना है, this will provide a result either true or false. Okay, so simple, when I assign any value like a equal to 10 and b equal to 20. Okay, and I try to print a is greater than b. So in this case, now execute this, this provide your false, so this provide your true or false result as soon as I change the symbol ki a is smaller than b. Now save this, now execute this, now you may notice over that this provide a true. Okay, so this provide either true or false result. चलिए हम देखते हैं type, now close this, now close this and save this, now try to execute this. So in this case this provide a boolean. Okay, so ये हमारा क्या है, boolean data type है। अब आते हैं बाइनरी डेटा टाइप पे। ठीक है, बाइनरी डेटा टाइप का क्या कहना है कि दिस विल प्रिंट द वैल्यू, particular value for that regarding that binary number. Okay, so simple here I assign a value, बाइनरी हमारा क्या होता है, तो बीट या बाइट में लेता है। ठीक है, so here you need to assign the types like byte and byte। अगर हम 65 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या लेता है, 65 for A and 66 for B like this. Okay, so this should print अगर मैं b की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ तो ये हमारा प्रिंट होकर आना चाहिए क्या, a और b। ओके, दिस इज नॉट बाइट्स, नाउ एग्जीक्यूट दिस। ओके, सो दिस प्रिंट a एंड b। ठीक उसी तरह अगर हम ले लेते हैं 95 ओके एंड 96, सो दिस प्रिंट योर कैपिटल AB एंड इन दिस केस दिस प्रिंट योर स्मॉल ab। You may notice over that. Okay, this print your small b like this. Okay, so simple कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू हमारा प्रिंट करेगा, जो वैल्यू हमारे गिवन बुलियन वैल्यू हमारे गिवन कैरेक्टर के लिए जो दिया गया है, ये हमारा प्रिंट करेगा। चलो हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो देन सिंपल हियर आई यूज टाइप्स एंड सेपरेट दिस, now save this, now execute this. Yeah, so this provide your, sorry for typing mistake. Yeah, now save this, now execute this. So now notice over that this provides your bytes. Okay, ये हमारा किस डेटा टाइप्स का है, तो बाइट्स का है। नाउ द नेक्स्ट वन हम कर सकते हैं बाइनरी डेटा टाइप में, एक हमारा आता है बाइट एरे। ओके, अगर बाइट एरे की बात करें तो ये हमारे म्यूटेबल होता है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल होता क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। सो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बाइनरी एरे इक्वल टू हमारा हो गया बाइट, जो कि हमारे इंडेक्स आईडी के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारे इंडेक्स आईडी के साथ होगा, जैसे 65, 66, 67। हियर आई राइट लाइक दिस एंड व्हेन आई ट्राई टू प्रिंट this like BA. Okay, now save this, now execute this. So in this case this provide answer like ABC. Okay, now notice over that what is the differences between both. So suppose when I try to change any particular value using index ID, so simple we can write like BA and index ID is what, for 0। index ID 0 को हम असाइन कर रहे हैं कि नहीं ये हमारा 65 वैल्यू ना होकर यहाँ मैं असाइन कर देती हूँ 66 तक है ना वैल्यू, चलो 68 मैं ले लेती हूँ। ओके, नाउ आई ट्राई टू प्रिंट अ BA। ओके,
Now save this, now execute this. So you may notice over that this change your value like DBC, okay. But inside the byte, okay, byte में अगर हम assign कर देते हैं value like B for the index ID 0, when I change value like 0 equal to 65. Okay, now save this, now execute this. So in this case this provide a error. Okay, so कहने का मतलब है कि ये जो हमारा बाइट है ये हमारा क्या है, इम्यूटेबल है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते. whenever when I talk about a byte array then we can change the value according to using this index id. हम इसके index id को यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हमारा आता है मेमोरी व्यू. ओके, मेमोरी व्यू डेटा टाइप. सो मेमोरी व्यू में हम ले लेते हैं एक चलिए डेटा ले लिए, कोई भी डेटा इक्वल टू हम यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं. मेमोरी व्यू में भी हम क्या करेंगे, यहाँ बाइट्स कीवर्ड का यूज करेंगे और ये डिस्प्ले करेगा मेमोरी व्यू. सो सिंपल हियर आई राइट 1 2 3 लाइक दिस एंड मैं देखना चाह रही हूँ मेमोरी व्यू इसका. सो दिस इज द वेरिएबल्स, 1 मिनट. Yeah, this is the variables. MB you may use any variables, have not any issue. And this is the keyword. Okay, memory view keywords है, given keywords है और मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ memory view for this data. So simple I use here data and I try to print the memory view for MB जो कि हमारा store है for the index ID 0 के लिए. Okay, now save this, now execute this. So in this case this provide 1 minute. ये आपका एरर यहाँ से शो कर रहा है क्योंकि बाइट में हम क्या, सॉरी ये टाइप तो आपका लेगा ही लेगा. हमने क्या चेंज किया था यहाँ पे, या बाइट एरे का है ना, ये बाइट का है. ओके, वी कैन नॉट चेंज, दिस इज इम्यूटेबल, ये हमारा इम्यूटेबल है, हम इसको इंडेक्स वैल्यू के द्वारा चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ एग्जीक्यूट दिस. सो नाउ नोटिस ओवर दैट दिस प्रोवाइड 1, ये हमारा 1 प्रोवाइड कर रहा है मेमोरी व्यू फॉर 1 एलिमेंट्स. ओके, चलिए हम चेंज करते हैं. ये मेमोरी व्यू हम देख रहे हैं 2 के लिए, इंडेक्स आईडी 2 के लिए. सो सिंपल दिस प्रोवाइड 3. वाई बिकॉज दिस इंडेक्स आईडी, बिकॉज इसका इंडेक्स आईडी हमारा क्या हुआ, द फर्स्ट फॉर जीरो इंडेक्स आईडी 1 जो है हमारा होल्ड किए हुए हैं इंडेक्स आईडी 0, 2 हमारा होल्ड किए हुए हैं इंडेक्स आईडी 1 एंड 3 हमारा होल्ड किए हुए हैं इंडेक्स आईडी 2. सो फॉर 2 इंडेक्स आईडी ये हमारा शो कर रहा है 3. ओके, लाइक दिस. नाउ द लास्ट वन हमारा आता है देख लो जैसे हियर आई राइट 0. सो फॉर द इंडेक्स आईडी 0 दिस प्रोवाइड 1 एंड फॉर द इंडेक्स आईडी 1 दिस प्रोवाइड 2. ओके, लाइक दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है नॉन डेटा टाइप. सो सिंपल नॉन मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल हियर आई असाइन आई एक्स इक्वल टू नन, x equal to none. देख लो ये ले लिया, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है. ओके, एंड प्रिंट आप क्या करवाओगे, x प्रिंट करवाओगे. नाउ सेव दिस, नाउ एक्जीक्यूट दिस. चलो एग्जीक्यूट करवा लेते हैं. सो सिंपल दिस प्रिंट नन लाइक दिस. ओके, टाइप देखना चाहते हो तो सिंपल हियर आई कैन यूज टाइप. नाउ क्लोज दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. सो दिस इज नॉन डेटा टाइप. ओके, ये आपका शो करेगा क्लास आपका क्या है, तो नॉन टाइप. So thank you for watching this. If you realize really the video is really important, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. In my next video, I will try to make you understand what is the differences between list, tuples and set. Thank you for watching this.